हेलो एवरीवन, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक हैं। आज ये बारिश हमें बहुत परेशान कर रही है और तो मुझे आई होप कि आप सब घर में हैं और बिल्कुल ठीक हैं। तो इसके साथ हम हमारा आज का लाइव शुरू करते हैं, जो है एनिमल असिस्टेड थेरेपी पे। तो कई बार जो अपने पास पेट रखते हैं। 1 सेकेंड। एम आई ऑडिबल नाउ? एम आई ऑडिबल? मेरा आवाज आप सुन पा रहे हैं? या आज बिकॉज ये हैवी रेन्स की वजह से थोड़ा टेक्निकल ग्लिच हम सब एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आई होप आप हमारे साथ बने रहेंगे टिल द एंड, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है, जो है एनिमल असिस्टेड थेरेपी। और ये मेरे भी दिल के बहुत करीब है, क्योंकि कई बार हमको पता नहीं होता कि ऐसी भी थेरेपीज एग्जिस्ट करती हैं और वो बच्चों को और अडल्ट्स को भी हेल्प कर सकती हैं। इसी के बारे में ज़्यादा जानने के लिए आज हमने एक बहुत ही बड़े और अच्छे एक्सपर्ट को इनवाइट किया है हमारे प्लेटफॉर्म पे। उनका नाम है राधिका रमन। राधिका रमन, शी इज़ अ मास्टर्स इन क्लिनिकल साइकोलॉजी from SNDT University. She is trained in AAT, that is Animal Assisted Therapy, by Radhika Nair and Rohini Fernandez. She is a part of Animal Angels Foundation India since the last 5 years. She has worked in schools, NGOs and child guidance clinics. तो इतने सारे years of experience के साथ वो हमारे साथ आज बहुत सारी information animal assisted therapy के बारे में share करने वाली हैं। So we can't wait to have her on our platform. So let's welcome her. Yeah. Hi, Dr. Hello. Kinjal, and hello everyone who are watching this live FB. And as you said, everyone is safe. बहुत जोर से बारिश हो रही है, and hopefully Yes, everyone that's is what I safe was as well. telling them, that because of the rains, we just now face some technical glitch. So please bear with us today. Yeah. Yes. And thank you Yes. so much, Radhika ma'am, for accepting this invite and being a part of this the series, the live series that we are sharing on Pehel's page. So means a lot to us. Thank you, Dr. Kinjal. It's our pleasure, actually, and I know you're actually already doing a lot of good work. So, continue doing that. And Thank this gives us the opportunity to talk about our field also. Thank you. you. The pleasure is all mine, and we can't wait to hear from you कि exactly animal assisted therapy exactly होता क्या है? Yeah. So, as the name suggests, animal assisted therapy. यहाँ पे हम animals, trained animals को session में लाते हैं, ठीक है? So that we can help in achieving the goal set for the session. So, जैसे कि कोई नया स्किल सीखना है, कोई नया काम सीखना हो, या कोई नया इवन ड्यूरिंग द रिकवरी प्रोसेस कोई क्लाइंट has been dealing with a mental health condition थोड़े टाइम से, and he's in the recovery process. तो जो रिहेबिलिटेशन का प्रोसेस होता है वहां पे भी काम आता है. एंड एट द सेम टाइम सबसे मेन, जब हम बोलते हैं एनिमल, तो ऑटोमेटिकली मोटिवेशन लेवल या प्रेरणा जो हमें मिलती है उनसे कुछ भी करने के लिए, वो इट प्लेज अ मेन रोल इन दैट. Okay. यहाँ पे तो like in India, we have been using only dogs, trained dogs or trained cats, that matter. But अगर आप बाहर के देशों में अगर देखोगे तो बहुत सारे एनिमल्स को एनिमल्स रोल प्ले इम्पोर्टेंट रोल, जैसे कि फार्म एनिमल्स हो, पिग से लेकर sheep, and even birds or fishes, and also dolphins, horses, even for that matter elephants. So the Wow. range is big. Yeah.
Amazing, amazing. So this whole concept कि animals से therapy हो सकती है. See, we all know कि those who have pets and when we go to a pet cafe, now this is the new trend that has come up. We all feel बहुत ज़्यादा calm feel होता है हमको बहुत happy feel होता है. But we didn't know कि उससे therapy भी हो सकता है और आप लोग इतने सालों से already ये कर रहे हैं. And I'm sure you guys are getting amazing results. तो ये जो Animal Angels Foundation है जिसके साथ आप जुड़े हैं एंड यू गाइस आर वर्किंग, तो क्या आप उसके बारे में थोड़ा और बता सकते हैं? Sure, sure. Animal Angels Foundation India was founded in 2005 by Rohini Fernandez and Radhika Nair. Both of them have a background in clinical psychology, and ये दोनों ने train किया है for animal behaviorist का and also AAT का. So that's when दोनों ने decide किया कि why not use animals, और animal lover भी है. So they thought why not use animals in the process of therapy. Because usually मास्टर्स के टाइम जो हमारा ट्रेनिंग होता है we काफी हॉस्पिटल्स या काफी चाइल्ड गाइडेंस सेंटर हम विजिट करते हैं. So that's when the idea stuck to them कि चलो let's use it, let's start it in India, like if it is there outside, why not start it here. So ऐसे ही उन्होंने शुरुआत की थी 2005 में. एंड जहाँ तक मुझे पता है शायद दे जस्ट स्टार्टेड विद 1 or 2 स्कूल्स बिकॉज लोगों को इसके बारे में इतनी जानकारी नहीं थी कि एग्जैक्टली होता क्या है. और बिकॉज इट इज अ डॉग तो कुछ खतरा तो नहीं है, लाइक यस. यू नो माय किड. सो ये इसके लिए काफी मेहनत भी की है उन्होंने, अवेयरनेस इंक्रीज करने के लिए सारे स्कूल्स में जाके बात करना हो या बताना हो. एंड धीरे धीरे जो उन्हें चेंजेस दिखे बच्चों में तो उतना कॉन्फिडेंस गया. एंड आई थिंक वी हैव बीन पार्ट ऑफ लॉट ऑफ स्कूल्स, स्पेशल स्कूल से लेकर इवन द रेगुलर सेटअप जो होता है स्कूल्स का वहाँ पे हॉस्पिटल. ग्रेट. या तो ग्रेट. we have had a lot of therapy. I mean, अगर आप नाम Animal Angels Foundation, Angels is Rohini's pet dog's name, who's no more. So उसके नाम पे शुरू किया था Animal Angels Foundation. And वाओ, वाओ. सो इट्स बीन सो मेनी इयर्स कि ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहा है एंड वी आर ब्लेस्ड, वी आर ऑनर्ड दैट वी कुड जॉइन हैंड्स विद यू ऑल एंड वी कुड कम अप विद दिस लाइव. आई एम सो 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 हैप्पी एंड ग्रेटफुल. yeah, तो जैसे आप बोल रहे थे तो मुझे एक चीज याद आई कि आप स्कूल्स जाते हैं या रेगुलर या स्पेशल स्कूल्स, तो ऐसा कौन सा पॉपुलेशन है जिसको एनिमल असिस्टेड थेरेपी से बेनिफिट मिल सकता है? क्या वो सिर्फ बच्चों के लिए ही है? नहीं ऐसा नहीं है. सो दैट इज वन ऑफ द प्लस पॉइंट ऑफ दिस थेरेपी. इफ यू सी कि ये थेरेपी हम कोई भी एज ग्रुप में अप्लाई कर सकते हैं. सिर्फ बच्चों के लिए ही है ऐसा नहीं है. वी कैन एडल्ट्स या टीनेजर्स या एज ए सेड सारे एज ग्रुप. जो यंगेस्ट एज ग्रुप जो जहाँ पे मैंने यूज किया था इट वाज 3 year old इफ आई एम नॉट रॉन्ग. उससे भी कम एज ग्रुप बच्चों के साथ राधिका नायर ने काम किया है. बट द यंगेस्ट विच आई गॉट टू मेट वाज 3.5. या एंड इवन द ओल्डेस्ट अगर मैं बोलूँ तो या वी हैव बीन टू जीरियाट्रिक सेटअप आल्सो जहाँ पे एल्डरली होम केयर होता है. तो वहाँ पे वी हैव वर्क विद पीपल हु फॉल इन द एज ग्रुप ऑफ 60s एंड 70s. सो इसका रेंज जो है थेरेपी का काफी एज ग्रुप, आई मीन इट कवर्स अ बिग एज ग्रुप. Yeah, I can see that it's across the lifespan. Like 3.5 years is Yeah. hardly anything, and to an old age. Amazing, amazing. So अगर हम इतना बड़ा लाइफ स्पैन देखते हैं तो फिर ऐसे कोई कंडीशंस को हम हेल्प करते हैं कि व्हाट इज इट, व्हाट आर द कंडीशंस इन विच एएटी हेल्प करता है या क्या उसके बेनिफिट्स होते हैं? Yeah. तो यहाँ पे अगर हम इसको क्लासिफाई करें तो गोल्स जो हम सेटअप करते हैं बेसिकली ये कॉग्निटिव गोल पे फोकस करता है, साइको सोशल गोल पे फोकस करता है एंड फिजिकल गोल पे फोकस करता है. सो अगर एग्जांपल मुझे देना है तो लाइक सिंप्लीफाई फिजिकल गोल का अगर एग्जांपल लो तो इफ आई एम, if the client is
in a wheelchair, using a wheelchair to get a daily activities के लिए. Yeah, even in school, there are a lot of kids who have to use a wheelchair or any supporting equipment. So यहाँ पे if I'm taking the dog और बच्चे को लेकर अगर हम स्कूल के ग्राउंड में भी अगर हम चल रहे हैं, so that is one of the goal that we're focusing on, जहाँ पे uh, the child is made to walk with a proper posture. या जो काम अगर मैं उसे ऐसे ही चलने बोलूँ शायद वो नहीं करेगा, बिकॉज द फोकस विल बी मोर ऑन द पेन कि मुझे नहीं करना है या मुझे पैर दुखता है. और व्हेन डॉग पिक्चर में आता है so obviously the focus shifts to the dog and so they are walking with the dog and automatically वो confidence level भी improve होता है कि मैं कुछ कर सकता हूँ या मैं कुछ कर सकता हूँ. Like, ये टास्क इतना डिफिकल्ट नहीं है. So this is like one of the example of the physical goal अगर हम फोकस करेंगे. एंड स्पेशल स्कूल में जब हम जाते हैं सो ऑब्वियसली वहाँ पे सेट ऑफ गोल्स आर ऑलरेडी डिसाइडेड फॉर द चिल्ड्रन बिकॉज अलग अलग क्लासेस में ऑब्वियसली हर एक बच्चे से अलग एक वी कांट सबको हम एक ही इसमें नहीं डाल सकते. सबका एबिलिटीज अलग है, सबका स्किल्स अलग है. सो हर एक क्लास में जो बच्चे हैं उनको जो ट्रेनिंग दिया जाता है वो भी अलग होता है, एक्सपोजर लेवल अलग होता है. सो वहाँ पे भी जब हम चूज करते हैं सो ऑटोमेटिकली हर एक बच्चे के लिए अलग से टेलर मेड गोल्स होता है. लाइक ओके ओके. सो ओवरऑल अगर मैं समझी हूँ तो हम जैसे फिजिकली कुछ इश्यूज हो जैसे सेरिब्रल पॉल्सी है या हेमीप्लीजिया है तो उन बच्चों को आप हेल्प कर सकते हो. एडीएचडी है या ऑटिज्म है यस तो क्या ऑटिज्म में भी ऑटिज्म हम हेल्प करते हैं? यस काफी रिसर्च भी हुई है ये फील्ड में. अगर सब we can refer to obviously the research for this, but to simplify it over here, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में जब कोई भी बच्चे पढ़ते हैं तो जो गोल्स होता है इट इज मोर टू इंक्रीज द सोशल कम्युनिकेशन कि बाकी बच्चों के साथ बैठकर वो एक जो फोकस होता है इनका जो खुद पे होता है उससे निकालकर बाहर की तरफ जो फोकस करना है एनवायरनमेंट पे. सो यस उसके लिए जो सेट होता है एंड एट द सेम टाइम विद दिस थेरेपी हम एक साथ दो गोल को टच कर कॉन्टैक्ट ऑफ द चाइल्ड, द बच्चे को आई कांटेक्ट मेंटेन करना है. कुछ भी आई मीन इफ ही हैज टू इफ ही वांट्स समथिंग इन द रूम सो एट द सेम टाइम स्पीच के स्पीच का गोल भी टच होता है बिकॉज द चाइल्ड हैज टू आस्क. उसे पूछना पड़ेगा कि चाहे वो दो शब्द यूज करे तो भी चलेगा बट उसे ऊपर देखकर थेरेपिस्ट के पास देखकर पूछना है. क्योंकि ये जो एक्टिविटी सेशन का काफी फन चीजें होती है लाइक डॉग्स को बिस्किट खिलाना या ब्रश करना डॉग को. सो यूजुअली बच्चे काफी एक्साइटेड रहते हैं ये सब चीजें देखकर. सो मोटिवेशन ऑलरेडी हाई रहता है थेरेपी रूम में बट उसको सिर्फ स्ट्रीमलाइन करना पड़ता है कि कैसे आप मांगोगे कुछ चीज और जब आप आई कांटेक्ट मेंटेन करते हो तो फिर ही मिलेगा आपको ये. अमेजिंग अमेजिंग. सो अगर हमें कोई पेरेंट्स सुन रहे हैं जिनके बच्चों को ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पे हैं या तो सेरेब्रल पॉल्सी है या कोई जीरियाट्रिक्स या कोई बड़े उम्र के जो बुजुर्ग हैं वो हमें सुन रहे हैं जिनको पार्किंसंस है या जिनको डिमेंशिया है सो आई एम श्योर उनको भी पेट थेरेपी डेफिनेटली और एनिमल असिस्टेड थेरेपी विल डेफिनेटली हेल्प. तो आप प्लीज इसके बारे में और जानिए और इन एक्सपर्ट से जिनको हम एनिमल असिस्टेड थेरेपी प्रैक्टिशनर्स कहते हैं उनसे कांटेक्ट में आइए और इस थेरेपी का लाभ उठाइए. ग्रेट ग्रेट राधिका मैम. सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि इसके लिए जैसे आप बोल रहे थे तो सिर्फ डॉग ही यूज होते हैं थेरेपी के लिए कि कोई और एनिमल्स भी यूज होते हैं
और जब हम बात करें एनिमल एंजल्स फाउंडेशन का, तो वहां पे आप कौन से एनिमल्स के द्वारा थेरेपी यूज करते हैं? Yeah. So यहाँ पे as I said in India the focus is only on dogs and cats ज़्यादातर. Animal Angels Foundation में हमने cat भी use किया है. Right now the therapy animals include only dogs. We have a lot of therapy dogs who have been trained by Ravita Nair and Rohini Fernandez. So breed सारे dogs का usually it is a Labrador or the Golden Retriever or beagle. तो ये सारे breed के जो dogs है they undergo training या उनका एक temperament test होता है to understand कि you know because as I said when you say dog तो सबके दिमाग में कोई negative ये रहता है ज्यादातर कि मैं तो कुछ हार्मफुल हो सकता है आपके बच्चे के लिए सो ऐसा नहीं है इट्स वन ऑफ द मिसकंसेप्शन एंड ऑल द डॉग्स आर बेसिकली ट्रेन्ड उनका टेम्परामेंट सेट किया जाता है बाय यू नो गिविंग देम सम एक्टिविटीज एंड पीपल एक्सपर्ट्स आर देयर इन दिस फील्ड आल्सो जिन्हें पता है कि यू नो क्या करना है एंड या सो they are also ये भी चेक किया जाता है कि बिकॉज व्हेन वी से स्कूल्स और एनी ऑफ दिस हॉस्पिटल ये सारे जगह यूजुअली क्राउडेड होती है बहुत भीड़ होता है बहुत अलग अलग तरीके की आवाजें आपको सुनाई पड़ेगी एंड काफी माहौल अलग होता है थोड़ा राइट, इतना शांत नहीं होता है बिकॉज ये जो भी थेरेपी एनिमल्स है दे लिव विद देयर फैमिली तो उनके पेट पेरेंट्स होते हैं सो राइट, ऑब्वियसली हम जब उन्हें स्पेशल स्कूल या कोई भी स्कूल्स में लेके जाते हैं वहाँ का माहौल अलग ही रहने वाला सो दैट राइट, इज द रीजन व्हाई it is very important कि you know they undergo training and their temperament fits the therapy process because थेरेपी सेशन जो होता है करीबन 2 घंटे का होता है वहां पे उनको बैठना पूरे टाइम ब्रेक्स दिया जाता है नो डाउट बट उस पूरे टाइम बैठना और बाकी जो आवाज आ रही है उनसे उनमें ना फोकस करके जो थेरेपी सेशन में जो काम चल रहा है उसमें फोकस करना ऑल्सो दे शुड बी कंफर्टेबल कि कोई भी उन्हें टच करे तो यू नो दे आर नॉट रिएक्टिंग सो एंड ये सब चीजों का चेक होने के बाद ही एंड प्लस यू हैव टू बी एक रैपो बिल्ड होता है इवन बिटवीन द ह्यूमन थेरेपिस्ट एंड डॉग सो सो दैट दे फील कंफर्टेबल विद अस वो घर से राइट, 2 घंटा बाहर रह रहे सो दे शुड एंशियस या डर या बेचैनी नहीं होनी चाहिए कि मैं वापस कब घर जाऊंगा या ये क्यों मुझे लेके जा रही है यस, सो ये सारा चीजों को जब हम फोकस करते हैं इसलिए जैसे आपने पहले कहा कि घर पे पेट रखना तो घर पे पेट को हाथ लगाना और जब हम इसे एनिमल असिस्टेड थेरेपी कहते हैं तो दोनों में काफी फर्क है यस। सो मैं वही बोलने वाली थी, हमारे ऑडियंस जो सुन रहे हैं, कि ये प्रॉपर जो डॉग्स होते हैं जो एनिमल एंजल्स फाउंडेशन यूज करते हैं वो ट्रेनिंग द्वारा जाते हैं, तभी जाके उनके जो हमारे थेरेप्यूटिक गोल्स होंगे उनके, तब हम उसको मैच कर पाते हैं। और जो भी मैम ने अभी कहा कि वो उनका टेम्परामेंट चेक किया जाता है, तो आपके बच्चे को कोई डर नहीं है। और जैसे उन्होंने और एक बार मेंशन किया कि ह्यूमन थेरेपिस्ट भी उनको अकम्पनी करते हैं, तो वही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि तो फिर एक ह्यूमन की क्या रोल होता है उस थेरेपी सेशन में, व्हेन वी ऑलरेडी हैव एन एनिमल असिस्टेड थेरेपी गोइंग ऑन, तो वहाँ पे ह्यूमंस कैसे हेल्प करते हैं? Yeah. So basically, human therapist is a mediator between the dog and the child. So because coming from a psychology background, मुझे वो ट्रेनिंग दिया गया है कि ऑटिज्म क्या होता है या एडीडी क्या होता है अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर या यू नो मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकती हूँ उस क्लाइंट से उस टाइम सो राइट, देयर हैज टू बी अ ट्रेन्ड पर्सन इन बिटवीन जो वो गोल्स सेट करे बिकॉज ये जो गोल्स भी हम सेट करते हैं ये कोऑर्डिनेट करके ही सेट करते हैं जैसे कि जो क्लाइंट्स की अगर यहाँ पे मैं क्लाइंट
रेफर कर रही हूँ बार बार, बट द फोकस इज मोर ऑन द स्कूल चिल्ड्रन. सो इन केस वहाँ पे टीचर्स जो है उनके साथ हम कोऑर्डिनेट करते हैं. बाकी जो थेरेपिस्ट होते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट, इन सबके साथ भी हम कोऑर्डिनेट करते हैं. बिकॉज बहुत टाइम ऐसे होता है कि द चाइल्ड इज टेकिंग 2-3 थेरेपीज. सो हमें एक अंदाज भी आता है कि क्या डेवलपमेंट्स हो रहे हैं. सो ये एक कोऑर्डिनेशन होता है. एंड पेरेंट्स के साथ भी कोऑर्डिनेशन होता है. एंड ये जो भी जगह पे हम काम करते हैं वहाँ पे उनको प्रायर इन्फॉर्मेशन, आई मीन अवेयरनेस दिया जाता है कि ये थेरेपी कैसे होगा, क्या होगा. सो जो भी उनके साथ भी हम फीडबैक लेते रहते हैं कि हाउ, क्या कैसे चल, क्या कितना फर्क आया है, या व्हाट इज द डिफरेंस. या बिकॉज ऐसा भी एक फेज होता है जहाँ पे सब कुछ स्टेबल है, बट सडनली देयर इज सम इमोशनल डिस्टर्बेंस ड्यू टू समथिंग. घर में कोई चेंजेस हुआ रहेगा, या इवन क्लासरूम में कुछ हुआ रहेगा. तो जब हम ये कोऑर्डिनेट करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमें बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है टू अंडरस्टैंड दैट. लाइक फॉर एग्जाम्पल, देयर वाज वन ऑफ द चाइल्ड जिसका जस्ट स्कूल शिफ्ट हुआ था. सो द टीचर सजेस्टेड कि he should take therapy. और the reason find out in the during the therapy session, जब उससे बातचीत शुरू हुई, एंड तब बहुत सारी चीज पता चला कि वो बच्चा पहले ही वॉज इन अ डिफरेंट स्कूल, जहाँ पे जो लैंग्वेज या मीडियम था स्कूल का वो उसका मदर टंग सेम. अभी सडनली ही हैज बीन शिफ्टेड टू अ न्यू स्कूल जहाँ पे ऑफ लैंग्वेज है वो टोटली नया है उसके लिए. सो उसे तकलीफ हो रही थी वो सब चीजों से. सो ऑब्वियसली स्कूल रेफ्यूज कर रहा था कि नहीं जाना है मेरे को. या स्कूल के क्लासरूम में भी ही वाज सिटिंग कॉर्नर लास्ट बेंच कहाँ पे, तो ध्यान नहीं दे पा रहा था. सो ये जब हम कोऑर्डिनेट करते हैं तब एंड एट द सेम टाइम वी कुड आल्सो टेल certain things to the teacher, or this is how, I mean, what are the areas that we can work on in future. राइट, राइट, ग्रेट. सो ये जो ह्यूमन थेरेपिस्ट होते हैं, जैसे आपके यहाँ पे इट्स ऑल साइकोलॉजिस्ट, तो उनको तो बैकग्राउंड है, तो ये Yes, लोग भी ट्रेनिंग लेते हैं राइट इन एनिमल असिस्टेड थेरेपी. yes, या yes. तो जब मैंने ज्वाइन किया था, ऑब्वियसली आई अंडरवेंट रिगरस ट्रेनिंग अंडर बोथ ऑफ देम. एंड एक बहुत प्लस पॉइंट ये था कि वी वेर ऑल्सो गिवन द एक्सपोजर कि जहाँ पे डॉग्स को ट्रेन किया जा रहा है वो भी हमें एक्सपोजर मिला. एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज राइट फ्रॉम द एज ऑफ 6 months आप डॉग को ट्रेनिंग दे सकते हो. तो एक बॉन्ड फॉर्म होता है थेरेपिस्ट और डॉग के बीच में भी. एंड यू ऑल्सो लर्न लॉट ऑफ थिंग्स पूरे प्रोसेस में कि हाउ टू अप्रोच. बिकॉज ये थेरेपी में कहाँ पे भी जिस आप यानी ऐसा नहीं होता है कि थेरेपिस्ट चिल्लाता है डॉग के ऊपर, या थेरेपिस्ट बच्चे, आई मीन कोई भी थेरेपी में बेसिकली ऐसा नहीं होता है, होता है, बट स्टिल ऐसा नहीं कि डॉग है तो हमें यूजुअली बाहर हम जब देखते हैं तो यस, एक सेफ्टी के लिए हम आवाज रेज करते हैं कुछ हुआ तो. यहाँ पे वैसा नहीं है. सो जितना आई मीन दोनों का सेफ्टी उतना ही इम्पोर्टेंट है, द डॉग एंड द चाइल्ड. सो एंड कहाँ पे भी सेशन ऐसा नहीं होता है कि द थेरेपिस्ट इज शाउटिंग एट द डॉग, या मार रहे डॉग को, या कंट्रोल कर रहे हैं उनको. राइट, It's nothing like that. So even the training process is also very gentle. किसी तरीके का ये नहीं है, जबरदस्ती नहीं है कि उनको ऐसे ही करना है. एंड डॉग्स आर क्विक लर्नर्स, काफी जल्दी सीखते हैं, काफी जल्दी अडेप्ट होते हैं सिचुएशंस में. राइट, So that is one of the reason why we use dogs most of the time. राइट, ग्रेट, ग्रेट. तो वही अगेन फॉर द ऑडियंस कि जो हमारे एनिमल असिस्टेड थेरेपी में जो एनिमल्स यूज होते हैं वो भी ट्रेंड हैं, और जो ह्यूमन थेरेपिस्ट साथ में आते हैं वो भी ट्रेंड है. तो ये प्रॉपर साइंटिफिक ट्रेनिंग के साथ लिया जाता है सेशन. सो आपको बिल्कुल डरने या घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती है.
So thank you Radhika ma'am for shedding light on this. And the next question that I had was, ऐसे common misconceptions होते हैं कई बार parents के कि एनिमल असिस्टेड थेरेपी ऐसा होगा या ऐसा नहीं होगा, या इससे ये नुकसान होगा, या इससे इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होगा. सो एनी ऐसा मिसकंसेप्शन जो आपने आपके जर्नी में देखा हो दैट यू लाइक टू शेयर? Yeah. There were many. I mean, in beginning में काफी सारे थे, but I would like to name a few. Like सबसे पहली चीज है कि लोगों को ऐसे लगता था, I mean, parents felt कि जो डॉग है जो हम ला रहे हैं वो अनक्लीन है, या फिर बिकॉज इट इज अ डॉग so it will be unclean, साफ नहीं होगा, या कुछ बीमारी होगी तो एनिमल को, जो which can affect my child. So ये बड़ा misconception था. Secondly, the other biggest misconception is, as I said, animal है तो unpredictable है, तो कुछ भी हो सकता है सेशन में, या एनिमल और डॉग अकेले रूम में है, थेरेपी चल रहा है. ये भी एक मिसकंसेप्शन. सो आई मीन दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म कि जहाँ पे मैं ये चीजें शेयर कर सकूँ. सो जो भी डॉग हम यूज थेरेपी के लिए सिलेक्ट आई मीन यूज करते हैं, दे ऑल स्टे विद देयर ओन फैमिली. सो ऑब्वियसली दे आर टेकन केयर ऑफ. उनका जो फिजिकल नीड्स होता है, दे आर नीट, दे आर क्लीन. उनके जो वैक्सीनेशन होते हैं, दे आर ऑल डन. सो और इवन देर आर डेज व्हेन द डॉग इज ऑल्सो अनवेल, जब उन्हें ठीक नहीं होता है. सो उस समय में हम कभी डॉग को नहीं लेके जाते स्कूल और एनी सेंटर. वी वी गिव देम दैट ब्रेक जो उनको चाहिए होता है रिकवरी फेज के लिए. तो बेसिकली या मेडिकल चेकअप जो भी होता है वो रेगुलरली होता रहता है ये सारे डॉग्स का. And we also try to get in touch with the pet parents. I mean, as in get in touch, as in we keep on asking that how is the therapy dog at home, so that we also understand कि घर के कुछ situation. I mean, since the dog is a big part of the family also, तो Yes. कभी कभार ऐसे होता है कि घर पे कुछ हो रहा है, उस वजह से भी the dog is disturbed or down. तो ये भी हम जानकारी लेते रहते हैं, so that हमें पता है कि ओके why is this happening, और क्या हुआ है उसकी. सो ये एक है. और दूसरा जो है कि वी नेवर लीव द थेरेपी रूम. लाइक वहाँ पे यूजुअली देयर आर 2 therapists in the room with the dog. I mean, in most of the situations, even if there is one therapist, then the child always never left alone. I mean, the therapist is there with the child, and ऐसा कोई सिचुएशन नहीं आता है जहाँ पे उनको दोनों को अकेला छोड़ दिया एंड दे आर डूइंग द टास्क. नो, इट डजंट हैपन दैट वे. ग्रेट ग्रेट. सो मेरा भी एक डाउट था कि अगर हमारा एनिमल असिस्टेड थेरेपी चल रहा है और अगर जो बच्चा है वो बहुत डर रहा है डॉग से द इनिशियल फ्यू सेशंस, तो वो कहीं ना कहीं डॉग पे भी यूजुअली जो मैंने देखा है, नॉट इन द सेशन, द रेगुलर डॉग्स, द पेट डॉग्स, तो वो भी कई बार डर जाते हैं. सो क्या ऐसा हो सकता है कि वो अटैक करने आ जाए या बच्चा बहुत ज्यादा रोने लगे या डर जाए? तो सो ऐसा सिचुएशन, कुछ मिसकंसेप्शन आपके इसमें आया हो, एंड हाउ डू यू डील विद इट देन? Yeah, so usually we ऐसे situations होता, I mean ऐसे situation कभी हुआ नहीं है because the dogs are trained, as I said, कि they are trained to deal with different situations. जोर से आवाज अगर आई, या फिर अगर बच्चा होता है कभी कभार कि बच्चा मूड में नहीं है आज करने के लिए, सो उसने कुछ उठा के फेंक दिया, या लीश, जो डॉग का लीश है वो खींच लिया. तो ये कोई भी सिचुएशन में डॉग उसके ऊपर नहीं रिएक्ट करता है. ज्यादा ज्यादा से ज्यादा व्हाट द डॉग, जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, व्हाट वी ट्राई टू डू इज मेक द चाइल्ड अवे फ्रॉम द डॉग, सो दैट ही आल्सो गेट्स दैट टाइम, he or she gets the time समझने के लिए कि मैंने क्या किया है अभी, या like this is not how I should react. And बहुत many of the situation ऐसा हो जाता है कि डॉग ही उठ के चला जाता है पीछे. So this is I mean you don't have to control anything over here.
और वो डिस्टेंस रखा भी जाता है बिकॉज जब आप थेरेपी सेशंस बोलते हो, बहुत टाइम ऐसे होता है कि जहाँ पे हमने सेशन स्टार्ट किया है, डॉग इज इन द रूम विद द थेरेपिस्ट और बच्चा डोर के यहाँ पे खड़ा है। सो जो रैपिड बिल्डिंग का जो फेस होता है वो इट्स डन ग्रेजुअली। कोई जबरदस्ती नहीं होती है कि आपने बच्चे को लेके आके बिठा दिया बाजू में डॉग के। यस। बिकॉज बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जिनको मोटिवेशन रहता है कि हाँ, या जिनको पसंद है ऑलरेडी डॉग, या जिनका पहले एक्सपीरियंस हो चुका है डॉग्स के साथ, सो दे आर कंफर्टेबल सिटिंग। बट राइट। एट द सेम टाइम ऐसे भी क्लाइंट होते हैं कि जिनको मोटिवेशन है, यानी जिनको करना है या इंटरेक्ट करना है डॉग के साथ, बट पता नहीं कैसे करना, या यस। कि मैं कैसे इंटरेक्ट करूं। सो राइट। ऐसे सिचुएशंस में हम बहुत टाइम ऐसे भी होता है कि वी टेक द डॉग टू द क्लासरूम ऑफ द चाइल्ड। सो वहां वाह। पे जब वो बच्चा देखता है कि बाकी मेरे फ्रेंड्स इंटरेक्ट कर रहे हैं उसके साथ, या बहुत कुछ कर रहे हैं उसके साथ, बिस्किट दे रहे हैं या पेट कर रहे हैं, बॉल उसका लेके खेल रहा है। सो बहुत ज्यादा टाइम ऐसे होता है कि बच्चा ऑब्जर्व भी करता रहता है ये चीज। सो राइट। ये बहुत ही ग्रेजुअली होता है। सो काफी एज आई सेड, जो बच्चे डरते हैं या जिनको पता नहीं रहता है कि कैसे अप्रोच करना है, तो उनके साथ ऑब्वियसली थेरेपिस्ट खड़े रहते हैं जो एक डिस्टेंस से उनको दे हेल्पिंग देम कि ठीक है, आज एटलीस्ट आपको लेट्स फीड द डॉग, एक बिस्किट हम देके देखते हैं। सो द चाइल्ड जब देखता है कि ये डॉग बाकी डॉग्स के जैसे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, कि उसके ऊपर कूद के नहीं आ रहा है, या फिर जंप नहीं कर रहा है, या बार्क नहीं कर रहा है, सो ये सब चीजें परखता है वो। एंड स्लोली ट्रस्ट बिल्ड होता है कि ठीक है, मैं भरोसा कर सकता हूँ, या मैं सेफ हूँ ये थेरेपी रूम में, यस। उसलिए। ग्रेट ग्रेट। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ ट्रेनिंग। इसीलिए मैं अगेन खुद को रिकॉर्ड करती हूँ कि मैंने पेट थेरेपी कहा, उसमें बहुत डिफरेंस होता है बिकॉज ऑफ द ट्रेनिंग। वरना ये होगा जो मैंने कहा कि कई बार हमारे बच्चे उनको कुछ करने जाएंगे और उसके उसमें द डॉग कैन रिएक्ट, बट व्हेन दे हैव प्रॉपर ट्रेनिंग, दिस इज हाउ द थेरेपी डॉग बिहेव्स। सो थैंक यू अगेन फॉर शेडिंग लाइट ऑन दिस इम्पोर्टेंट टॉपिक और बहुत बड़ा डर जो पेरेंट्स को हो सकता है। यस। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जैसे आपने कहा कि आप स्कूल्स में ओटी है, पीटी है, स्पीच है, उनसे आप डिस्कस करते हैं एंड अकॉर्डिंगली गोल्स बनाते हैं। तो यस। आपके ऐसे प्रॉपर एएटी प्रैक्टिशनर के जैसे कुछ असेसमेंट या बेसलाइन कुछ ऐसा होता है जैसे पॉइंटर्स दैट यू गाइस यूज बिफोर यू स्टार्ट द थेरेपी, और गोल्स कैसे बनाए जाते हैं और प्रोग्रेशन कैसे मॉनिटर किया जाता है कि एएटी से ये चेंजेस आ रहे हैं? फाइन। सो यहाँ पे यूजुअली एज आई सेड, तो रेफरेंस हमें मिलता है, इट्स फ्रॉम द थेरेपिस्ट और फ्रॉम द टीचर्स, और जो भी सेंटर में हम काम करते जाते हैं वहाँ के। सो कभी कभी उनका ही ऑलरेडी प्री सेट गोल्स होता है। लाइक वन ऑफ द स्कूल्स दैट वी गो, वहाँ पे उनका फोकस ज्यादातर ये है कि ग्रुप एक्टिविटी लेना है, बिकॉज इट इज अ स्कूल दैट अटेंड्स टू द स्पेशल नीड्स। तो बाकी पूरा टाइम जो उनका क्लासरूम सेटअप ऐसा है कि इंडिविजुअल अटेंशन मिल रहा है, वन टीचर एंड टू स्टूडेंट्स और समथिंग लाइक दैट। तो पूरा हाफ हाफ ऑफ द डे स्पेंट लाइक दैट। सो ये सेशन से उनका एक्सपेक्टेशंस होता है कि सोशल लेवल पे काम किया जाए। लाइक इफ वहाँ की वही 4-5 स्टूडेंट्स को अगर मैं लेके बैठूं, तो इफ आई एम गिविंग देम अ कॉमन टास्क ऑफ इंटरेक्टिंग विद द डॉग, या प्लेइंग विद द डॉग, मेन वही हम देखते हैं कि मोटिवेशन कितना है ये थेरेपी के लिए। बिकॉज एज आई सेड, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं किया जा सकता कि आपको बैठना ही है, या आपको कुछ नहीं करेगा डॉग। तो ऐसा कुछ uh, uh, ये फेक मोटिवेशन नहीं करेगा। बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थियरीज ऑल्सो इन दिस, कि जहाँ पे हम बोलते हैं ना कि एग्जैक्ट लेवल का जब मोटिवेशन होता है, तो ऑटोमेटिकली गोल्स भी अचीव होते हैं, या जो हमें काम करना है वो भी हम कर पाते हैं। बहुत कम मोटिवेशन होता है तो भी नहीं कर पाते, बहुत ज्यादा हुआ तो भी एंशियस हो जाते हैं, समझ में नहीं आता है कि क्या करना है, कैसे करना है। तो
ये जो गोल्स हम सेट करते हैं, ये बेसिकली एज ग्रुप के हिसाब से सेट होता है। तो अगर चिल्ड्रन है, सो बच्चों के साथ अगर हम डील कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली बिहेवियर चेंजेस लाने में जो गोल्स होता है वो, एंड फिजिकल गोल्स भी होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट कॉग्निटिव या प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड भी काफी सारे गोल्स सेट किया जाता है। एंड अगर इफ इट इज हॉस्पिटल सेटअप जहाँ पे रिहैबिलिटेशन है, प्रोसेस चल रहा है, एडल्ट्स हु आर रिकवरिंग फ्रॉम अ मेंटल हेल्थ इलनेस, सो वहाँ पे गोल्स कैन बी एज सिंपल एज सेल्फ केयर गोल्स ऑल्सो, लाइक Yeah. टॉकिंग ऑन सेल्फ केयर, या हाउ what all happens in the day, or interacting with each other in that social setup, or doing an activity together इस Right. तरीके से। हाँ, so uh, one of the example I would like to quote here is like we yeah, हम एक सेंटर में से एसोसिएटेड थे जहाँ पे it was basically जहाँ पे बच्चे जिसका बैकग्राउंड इतना स्ट्रक्चर नहीं है, they don't have a family, or अगर फैमिली है तो भी इट्स अ लॉट ऑफ इमोशनल इश्यूज। तो वहाँ पे काफी गोल्स हम कवर करते थे, लाइक इवन गुड टच बैड टच, लाइक हाउ टू टीच देम गुड टच बैड टच विद द हेल्प ऑफ अ डॉग, और टीचिंग देम अबाउट एक्सप्रेसिंग इमोशंस। बहुत ज्यादा टाइम ऐसे होता है कि जो एज ग्रुप में बच्चे थे वहाँ पे, लाइक 3 से लेकर 10 तक, सो ज्यादातर उनका गुस्सा या फिर चिल्लाने से वो बताते थे अपना जो भी इमोशन। तो इवन ये सारे एरियाज में भी हम वर्क कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डॉग, वैल्यूज एंड टीचिंग देम प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कि डॉग है तो व्हाट डू यू थिंक, उसे क्या करना चाहिए, या टीचिंग देम एम्पैथी, या आप कैसे जिस तरीके से आपने अभी बिहेव किया उससे द डॉग फेल्ट बैड। Yes. आप, एज आई सेड मेनी टाइम्स, इफ द चाइल्ड इज शाउटिंग, डॉग उठ के अगर पीछे हो जाता है, या इवन स्लाइट उसके जो बॉडी लैंग्वेज में चेंजेस आता है, वो भी हम फोकस करते हैं। आई मीन ऐसा कभी नहीं होता है कि द डॉग इज showing any disinterest in the session, because that is the main reason why we use animals. बिकॉज जब हम ह्यूमन इंटरेक्शन जब हमारा होता है, तो सामने वाले का चेहरे का हाव भाव हमें दिखता है, तो उससे हम बहुत ही कॉन्शियस हो जाते हैं कि ये क्या सोच रहा है मेरे बारे में, या Yes. ये कुछ, ये इसने ऐसा रिएक्ट किया है, इसका मतलब ये है। सो Yes. वो एक चीज एनिमल, स्पेशली डॉग्स, बिकॉज अनकंडीशनल सेल्फ एक्सेप्टेंस जो हम कहते हैं वो उनसे मिलता है। सो उनके हाव भाव, या उनके हाव भाव में वो चेंजेस नहीं आता है, Right. Right. जज नहीं करते हैं सामने जो क्लाइंट बैठा है उसे, उसने कोई भी कपड़ा पहना हो, या एज ए सेट ऑल दिस सेंटर्स जहाँ पे हम जाते हैं, इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली दे आर नॉट दैट ग्रेट, दे कैन Right. बी वेल ड्रेस्ड। Right. सो वो एक्सेप्टेंस उन्हें मिलता है, दैट हेल्प्स देम अ लॉट। Right. 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 अमेजिंग। सो जैसे आपने मोटिवेशन वर्ड यूज किया, जो बार बार आपके हमारे कॉन्वर्सेशन में आ रहा था, हम इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी देयर इज अ होल फ्रेमवर्क, सेंसरी इंटीग्रेशन करके एक मोड, और ये रेफरेंस है या जो हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो हम ज़्यादा यूज करते हैं व्हेन इट कम्स टू ऑटिज्म। और उसका एक बेसिक प्रिंसिपल है, वो है इनर ड्राइव। सो आई कुड रियली कनेक्ट देयर कि इनर ड्राइव इज मेरा मन करे कि मैं कोई काम करूं, या मेरा मन करे कि मैं बात करूं, या मेरा मन करे कि मैं खेलूं। अगर वो नहीं है तो थेरेपी कभी आपको वो रिजल्ट नहीं देगा जो आपको देना चाहिए। एंड दैट्स वेयर द डॉग कम्स इनटू द पिक्चर, बीइंग लाइक यू सेड, वो जो हमारे ह्यूमंस के जो डिफिकल्टी है विथ ह्यूमन फेसेस, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, द ड्रेसिंग एंड ऑल ऑफ दैट इज ऑल काइंड ऑफ बार्ड। एंड हमारे पास एक चीज है जो हमको थेरेपी के लिए यूज कर सकते हैं।
सो दिस इज सो गुड। और कई बार तो ह्यूमंस अगर बच्चे बैडली बिहेव कर रहे हैं तो सामने रिएक्ट करते ही हैं, कुछ नहीं तो फेशियल Yes. एक्सप्रेशन तो करते ही हैं। The dog is again and again giving you the same kind of reaction, and that too वो भी इतना बड़ा चढ़ा के नहीं। So I loved whatever you just said, और वो बिल्कुल right है। अगर हमें पेरेंट्स सुन रहे हैं, ओटी हो या बिहेवियर थेरेपी हो, वो भी कहीं ना कहीं इसी प्रिंसिपल्स पे हम काम करते हैं जो आपने बहुत राइटली मेंशन किया अभी। और जो हमारा इनर ड्राइव जो स्पेसिफिकली किड्स ऑन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम के लिए एक टास्क है हमारे लिए, उसमें डॉग हमको डेफिनेटली एक बड़ी मदद देता है। Great, great. Yeah. Because even simple activities like playing ball हो या काफी structured होता है, ऐसे नहीं कि the child can do the way he wants, कि उसने कहाँ पे भी उठा के डाल दिया बॉल, या ये यूजुअली घर पे होता है when you have a dog। आप Yes, वहाँ पे ऑब्वियसली रेस्ट्रिक्शंस नहीं आता है, बट इन अ थेरेपी देयर इज सम स्ट्रक्चर टू इट, कि आप अगर बिस्किट भी अगर दे रहे हो तो you're आस्किंग फॉर इट फ्रॉम द थेरेपिस्ट बाय मेंटेनिंग आई कांटेक्ट। इवन कुछ टाइम के लिए हो तो भी चलेगा, बट आप देख रहे हो, मांग रहे हो जो आपको चाहिए। और यहाँ पे एज ए लैंग्वेज का गोल भी क्लियर होता है, जहाँ पे बच्चा क्लियरली, बहुत टाइम ऐसे होता है कि द ट्रीट्स जो डॉग्स लाते हैं, या इवन कैरेट्स या हेल्दी फूड जो भी हम प्रेफर करते हैं उन्हें, तो दे आर कलरफुल, दे हैव डिफरेंट शेप। सो yes, वो भी हम इंट्रोड्यूस करते हैं कि आपको एग्जैक्टली क्या चाहिए। तो अगर मैम प्लीज गिव मी वन कैरेट, या जो भी वो लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो कि मैम मुझे एक कैरेट दो, या if the therapy dog's name is Happy, for example, तो Happy आप एक कैरेट खाओ। सो ये एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, इट इज नॉट कि आपने कैसे भी खोल दिया और दे दिया और हो गया काम। या ब्रशिंग का अगर टास्क हो, सो इससे ग्रूमिंग का एक आइडिया भी जाता है क्लाइंट को कि हाउ इम्पोर्टेंट इट इज टू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, की सेल्फ केयर कितना इम्पोर्टेंट होता है। सो right, वहाँ पे भी काफी कभी-कभार ऐसे होता है कि वी मेक सम यू नो मोर गोल्स, लाइक आपको काउंट करके करना है 1 टू 10 तक, या right, इफ इट इज अ ग्रुप सेशन, एक बच्चा ब्रश कर रहा और दूसरे बच्चे काउंट कर रहे हैं उसके लिए। सो ये सारी एक्टिविटी ऐसा होता है कि इट इज अ ग्रुप टास्क एंड इट right, इज इक्वली फन। तो दे फील गुड अबाउट देमसेल्व्स कि मैंने ये किया, मैंने right, कोम किया एंड डॉग इज लुकिंग सो गुड। एंड कभी right, कभार ऐसे होता है कि इवन यू हैव टू टीच देम हाउ टू होल्ड इट, ग्रिप होता है। एंड ये सब करते हुए बहुत बार ऐसे होता है कि बच्चे ट्राई करते हैं कि डॉग का कान खींच लेते हैं, या बाल अगर है ज्यादा तो वो ट्राई करते हैं खींचने के लिए। तो ये सब चीजें भी उनको सिखाया जाता है कि यू आर नॉट यू नो आप आपको जैसे Sit चाहिए down. उस हिसाब से आप नहीं क्रिएट कर सकते। Yes, yes. ग्रेट, ग्रेट। सो अगर मैंने करेक्टली समझा हो, तो बी इट इमोशनल रेगुलेशन, be it a goal of social skills, be it a group a goal of speech and language, articulation, communication, be it behavior, I think all of this is targeted in some or the other way in a single session, provided हमारे goals में वो एक part है। या but I can see all of this happening। या great, या great। और जो एंड हमारे ये बच्चे, सारी चीजें हर एक सेशन के बाद वी मेक अ नोट। लाइक आपने पूछा था क्वेश्चन, आई फॉरगॉट टू एड्रेस दैट, कि हाउ डू यू कीप अ टैब कि क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो हर एक सेशन के बाद ये सारा चीज नोट किया जाता है कि आज का सेशन का गोल क्या था, एंड हम कर पाए अचीव या नहीं कर पाए, रीजंस क्या थे, और हाउ वाज द चाइल्ड बिहेवियर ड्यूरिंग द सेशन। तो ये सारा एक डे टू डे अपडेट होता है सेशन का। और जो सेंटर्स में हम काम करते थे वहां पे भी वी हैड टू, लाइक हर एक 3 मंथ्स का एक रिव्यू होता है जहाँ पे आप बता रहे हो कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। एंड देर आर टाइम्स जहाँ पे यू नो एटी इज नॉट वर्किंग बियॉन्ड द पॉइंट, तो वहां पे राइट, हम वो स्टॉप कर देते हैं फॉर दैट चाइल्ड, सो दैट वाह,
इमीडिएटली नहीं स्टॉप होता है, इट इज ऑल्सो डन ग्रेजुअली, बिकॉज एक बॉन्ड फॉर्म हो गया रहता है. सो द चाइल्ड इज ऑब्वियसली टेकन फॉर द सेशन इन बिटवीन, बट तो वो भी हम देखते हैं कि कितना वर्क हो रहा है with a specific. If it is not working, okay, then what will we do? Amazing, amazing. And I just wanted to add ke, again, I'm not an expert here. आप, you can correct me अगर मैं wrong हूँ. But whenever a person is around a pet या around an animal जो इतना non-judgmental और इतना calm and composed है, and मैं उसको hug कर सकती हूँ, मैं उसको cuddle कर सकती हूँ. So already जो हमारे बच्चे जो autism spectrum पे हैं, ADHD पे हैं, उनके brains का जो neurochemicals हैं वो ऐसे भी there is a little up and down happening. तो जब हम ये कर रहे हैं, ऑक्सीटोसिन एंड गाबा, दीज आर टू न्यूरोकेमिकल्स जो रिलीज होते हैं, जो मुझे काम रखने में हेल्प करते हैं. अब जब मैं काम हूँ या मैं शांत हूँ, उसके बाद आप जो भी थेरेपी करोगे ना, वो आपको तुरंत रिजल्ट देगा या जल्दी रिजल्ट देगा. सो आई कैन नाउ कनेक्ट के जो हम ओटी में डिफरेंट एक्टिविटीज के थ्रू वही न्यूरोकेमिकल्स रिलीज करते हैं, वही चीज एक डॉग कितना इजीली एंड कितना अफेक्शनेटली एंड कितना in a very smooth way वो चीज कर देता है. Amazing. Yeah, yeah. Because there are sessions जहाँ पे they just want to pet the dog and just lie on the dog. Yes. ऐसे भी सेशंस हुए जहाँ पे मेजर फोकस, अगर से इट्स अ 45 मिनट सेशन फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे मेजर 20 मिनट्स इज जस्ट यूटिलाइज्ड फॉर दिस. We cannot underestimate, नहीं कर सकते इस पावर को. I mean, it really helps them to calm down because ऐसा भी होता है कि, as I said, there are days when कुछ ups and down हुआ रहता है in the classroom, in the house. Yeah. So we can sense that, okay, the child is not in the mood. अगर उस दिन के लिए हमने कुछ गोल सेट किया है, और जरूरी नहीं कि वही गोल पे हम काम करें, अगर the child is not coming with that kind of energy and motivation or in the mood, so obviously वहाँ पे alter करते हैं हम, कुछ और एक्टिविटी देते हैं. And once the child is okay, then we introduce the activity which was planned for that day. Amazing, amazing. And आप जब बोल रहे थे, another thing that struck me was because autism spectrum में या otherwise also हम सबको भी होते हैं preferences, but specifically in autism spectrum you will see a lot of tactile defensiveness. मतलब टच ज्यादा पसंद नहीं, डिफरेंट हेयरी टेक्सचर पसंद नहीं. तो अगेन जब आप पेट कर रहे हो डॉग को, तो आप उस पे भी धीरे 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 मतलब सेंसरी इश्यूज पे भी काम चल रहे हैं. सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द चाइल्ड, या, एंड द गोल्स दैट यू सेट. सो नाउ आई कैन टोटली अंडरस्टैंड कि अगर AAT है तो वो कैसे दूसरे थेरेपीज को ब्यूटीफुली एज एन एडजंक्ट और एनहांस करने में हेल्प कर रहा है. Yes, yes, because AAT is always, I mean, it's जैसे आपने कहा कि it's always work well with all these other therapies also. It's not just AAT. Yes, yes, yes. Great. तो जो हमारे AAT के सेशंस होते हैं वो कितने लंबे होते हैं एंड कितने फ्रीक्वेंट होते हैं? हाउ डू यू डिसाइड दैट? Yeah, so see, when we work with schools and all, so obviously वहाँ पे एक set of guidelines होता है, because they try कि हर एक बच्चे को सारे थेरेपी का लाभ हो. ऐसा नहीं कि किसी को कुछ एक थेरेपी ज्यादा मिल रहा है, या डिपेंडिंग ऑन देयर नीड या उनका रिक्वायरमेंट जो भी है उसके बेसिस में. बट या वीकली सेशन हेल्प्स कंसिस्टेंटली. जब हर वीक में एक सेशन होता है, सो वो काफी हेल्पफुल होता है, बिकॉज आप कॉन्स्टेंटली डॉग से मिल रहे हो. ऐसा नहीं कि देयर इज अ बिग ब्रेक बिटवीन टू सेशंस, because this is again a rapport is formed between the dog and the child. So बहुत ज्यादा टाइम ऐसे होता है कि कुछ कारण अगर dog couldn't come for the session, so and if there is another dog, the child asks कि क्या हो गया, क्यों नहीं आता है. Over there we do tell them कि ठीक है, आज उसे ठीक नहीं है. This also indicate कि वो भी तुम्हारे और मेरे जैसा ही है, उसे भी he is also as human as you and me. Yes. तो उसकी भी कुछ रिक्वायरमेंट है.
तो हमें रेस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है. सो या वीकली वन सेशन हेल्प्स कंसिस्टेंटली अगर हम ये करते हैं. सो एंड यूजुअली द सेशंस आर यू नो ड्यूरेशन जो होता है 45 मिनट, उस हिसाब से वहां पे भी नाउ रियल एक्सपेक्टेशन बहुत रियल रखना बहुत जरूरी है. नाउ जो बच्चा अगर 10 मिनट से ज्यादा नहीं बैठ सकता, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती कि वो पूरा 45 मिनट डॉग के सामने टास्क राइट करें. तो राइट उस हिसाब से प्लान किया जाता है कि ठीक है, आप ब्रेक्स दिया जाता है बच्चों को बीच में, या कुछ एक्टिविटीज ऐसे भी होते हैं जहाँ पे प्लेइंग बॉल विद द किड, कि उसको एक टास्क ऐसा दिया जहाँ पे उसको बैठ के करना है. एंड देन देयर इज अ टास्क वेयर ही नीड्स टू वॉक और वेयर ही नीड्स टू प्ले, जहाँ पे चल सकता है या उतना फ्रीडम है. सो वहाँ पे वो गोल रियलिस्टिक रखना बहुत जरूरी है. राइट राइट राइट. सो ये इंडिविजुअल सेशंस भी होते हैं और ग्रुप सेशंस भी एएबी में होते हैं. यस, इंडिविजुअल भी आप रख सकते हो, ग्रुप सेशन भी आप रख सकते हो. इट टोटली डिपेंड्स कि व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट चाइल्ड. सो मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट यू कैन स्टार्ट विद द इंडिविजुअल सेशन एंड ग्रेजुअली आप वो ग्रुप में ऐड कर दो, सो दैट they don't feel say a child with autism, if agar unka is not comfortable with social interaction or sitting with someone else, so I cannot expect कि पहले दिन मैंने उसे 5 बच्चों के बीच में बैठा के एक्टिविटी दी. नहीं, राइट that has to be done very राइट राइट. ग्रेट ग्रेट. सो जो आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, कोई ऐसे केस स्टडीज आप हमसे शेयर कर सकते हैं विच यू वुड लाइक द ऑडियंस टू नो कि कैसे एएटी ने आपको हेल्प किया. yeah. One of the like prominent case which I would like to share is about a child who एक स्पेशल स्कूल का केस है जहाँ पे हम जा रहे थे. एंड सो अगेन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में द क्लाइंट वाज फॉलोइंग. तो द गोल्स वेयर कि सोशल स्पीच उसका इम्प्रूव हो या ग्रुप एक्टिविटी करे. द चाइल्ड वाज न्यू, वी कुड सी कि उसे रेजिस्टेंस था कि थेरेपी रूम में आने से, या फिर एज यू आल्सो नो दैट चेंज से डर लगता है उनको. एक जो माहौल होता है, यूज्ड टू होते हैं वो एनवायरनमेंट, वो क्लासरूम. तो इवन कमिंग फ्रॉम दैट क्लासरूम टू अ थेरेपी रूम कैन कॉज लॉट ऑफ एंजाइटी टू देम कि मैं कहाँ जा रहा हूँ और ये कौन है, यहाँ पे क्या है. सो रिमेंबर जो पहले सेशंस उसके साथ हम करते थे, ही यूज्ड टू गेट स्कैर्ड. ही वाज ओके, हमारे साथ वो खड़े रहता था, बट when he used to look at the dog, he used to be very scared. So literally, he used to like hide behind us. So, but uh, but he was also equally motivated कि क्या है वो, या क्या चल रहा है, या कौन बैठा है वहां पे. And it was a big dog, so he obviously में आएगा ही. So gradually उसका जो sessions हमने शुरू किया था, as I said, it was he standing in the door and the dog in the therapy room, and he was introduced to small tasks like feeding biscuits or throwing a ball, इस तरीके से. And slowly he was asked to make after some sessions we made him sit inside the room between the dog and the client. So gradually उसे भी समझ में आ रहा था ये बात कि this dog is not it's okay to pet the dog, it's okay to interact with the dog. Speech deficiency, I mean speech इतना expressive नहीं था उसका. So obviously the only way he used to express himself was crying and और ज़्यादा से ज़्यादा he used to like walk out कि नहीं करना मुझे ऐसे. But and slowly a bond was formed, as I said, gradually जब ये सारे barriers clear हुए and when he understood, okay, this is a safe place. And after a lot of after a few days I realized that there was this one session जहाँ पे the kid is coming inside
and he just because उसका favorite activity वही था, he used to like to pet the dog and sleep on the dog. So he laid his head on the dog and he started crying. And when we inquired, that's when we realized ki, okay, there has been some emotional up and down happening at home. So uh, over here, like I felt ki the therapy dog helped him to express himself emotionally, जो वो स्पीच के थ्रू नहीं कर पाया. Yeah. Was I audible या कोई range issues था? I mean, So yeah, Radhika ma'am, we lost you in between. पूरा connection चला okay. गया था. So if you can just repeat Okay, yourself, sorry. आप क्या बोल रहे थे? We lost you Yeah. after you allowed him to throw the ball and all of that. After that, we lost you. Yeah. So gradually, when the rapport was built, and I could see that उसे वो बात समझ में आ रही थी कि I can take the help of this dog to express my emotion also. So I remember one of the session जहाँ पे he usual therapy session जब उसका चल रहा था, he just laid his head on the dog because वो उसका favorite activity था. And while petting the dog, he just like पूरे आंखों से उसके आंसू आ रहे थे. And when we realized कि okay, there was something that was happening at home that was disturbing him. So that petting the dog helped him to Right. release that emotion जो वो I mean speech के through express कर पा रहा था कि if a child has the ability to speak और जो बच्चे यूज करते हैं स्पीच को पूरी तरह से एटलीस्ट देयर आर टाइम्स जब वो भी एक्सप्रेस नहीं कर पाते. बट यहाँ पे आप समझ सकते हो कि कितना डिफिकल्ट होता रहेगा उनके लिए कि सो या. Am I audible now? Or- Yes. Yes. Dr. Now, Kunji, am I now we audible can now? see you. Yeah. Yeah. Yes. Now it's better. Great. So yeah, that was one of the case. ऐसे भी cases हुए जहाँ पे the child is resistant to study or he is not wanting to open the book. तो काफी सेशन उसमें भी I mean this is one of the another example which I would like to give जहाँ पे with the help of the dog a lot of positivity was created for the I mean for studying या फिर आप read करके बताओ dog को ये या फिर स्कूल में आना क्यों इम्पोर्टेंट है. The dog is also coming to school आपसे मिलने के लिए. Right. So Right. so when you come to school you can meet the dog also. So Right. Right. ये भी एक मोटिवेशन फैक्टर होता है to like and basically when you deal with children uh, bonding becomes easier for them with the dog because I have seen there are kids who are जो बोलते हैं कि so this therapy dog is my brother, Joey is my brother. So इतना attachment हो जाता है they, uh, uh, they don't have any barriers in their head. ये dog है. Amazing. Amazing. So यही तो हम हमारे बहुत बड़े goals हैं कि attunement, attachment, motivation, wanting to do something. यही तो हम lack कर रहे हैं when it comes to kids with autism spectrum. So great, great. तो अगर हमने जो हमारे लाइफ से आज सीखा है बहुत सारे एरियाज को एनकम्पास करता है AAT. जैसे
डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ अदर थेरेपीज, बट बहुत अच्छा एक पुश देता है वो थेरेपी प्रोसेस को. सो दैट्स ग्रेट. हमें एक क्वेश्चन आया है मैम बाय नेहा भानुशाली. शी सेज ऑन अ स्केल हाउ मच वुड यू रेकमेंड दैट इट्स गुड एंड सेफ टू लेट न्यूबॉर्न्स बी अराउंड डॉग्स? Okay, I would require more clarity on this question because it's very vague. If you're asking therapy process कि अगर इसमें बोल रहे हो तो obviously the therapist is involved and there is a control over the session कि क्या activity हो रहा है या क्या. Okay, okay. So what I can understand, अगर न्यूबॉर्न्स हैं तो बेसिकली दे आर डिसरेगुलेटेड एट टाइम्स, या वो बहुत ज्यादा रो रहे हैं या कुछ फीडिंग इश्यूज है. सो बेसिकली व्हाट आई अंडरस्टैंड ऑफ न्यूबॉर्न्स इज द इमोशनल रेगुलेशन. आई थिंक अगर नेहा हमें सुन रही हैं, शी कैन गिव अस मोर इनपुट्स ऑन दिस. बट तो क्या डॉग्स को हम इस छोटे उम्र में भी बच्चों के पास आने दे सकते हैं, एंड कैन थेरेपी बी डन देयर? Yeah, as long as the dog is trained and it helps to because sensory issues क्या बोलते हो sensory integration का जो part होता है, like all the kids like touching the soft fur or dog के डॉग को कुछ बिस्किट खिला दिया या जो भी एक्टिविटी या बॉल, इवन इफ दे आर नॉट इन्वॉल्व बट वो देख तो सकते हैं कि कुछ एक्टिविटी चल रहा है राइट, उस हिसाब राइट. ओके, तो ओके, ग्रेट, या ग्रेट. दे कैन ईमेल अस मोर इफ स्पेसिफिकली अगर उनको कुछ जानना है तो दे कैन email it on website, I mean on the FB page. We'll be happy to provide more details. Great, great. So Neha, if you are hearing us, please feel free to get in touch with us. We'll love to, kind of respond back. Yeah. Great, great. So, just because Mira, yeah, am I audible now? Yeah, you're audible now. Just went Yeah, mute for a second. yeah. So मेरा भी इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग एंड interaction with AAT nahi tha. So that's the reason I thought that let's come together and spread awareness about this. और हम भी इन पहल कुछ शुरू कर सकते हैं together. So it was such an insightful session. और आई एम श्योर जो पेरेंट्स हमको सुन रहे हैं या कोई प्रोफेशनल्स हमको सुन रहे हैं, रेगुलर टीचर्स हमको सुन रहे हैं, आज उनको भी जानने मिला होगा कि AAT करके भी एक थेरेपी होता है which is done by animals, and there are human therapists who accompany them. और बहुत साइंटिफिक और गोल डायरेक्टेड होता है, ऐसे नहीं कि अंधेरे में कुछ भी चल रहा है, एंड इट इज ऑल डॉक्यूमेंटेड. So please take benefit of this amazing therapy that Radhika ma'am just shared with us. So it was great to have you, Radhika ma'am, with us. We look forward to have many more interactive sessions again on different topics when it comes to animal assisted therapy. Yep. Can you hear me, ma'am? Thank you, Kinjal, for providing this platform and जहाँ पे Okay. आई थिंक इट्स बिकॉज ऑफ द रेन्स जो अभी वापस बहुत जोर से शुरू हुए हैं. वी आर अगेन फेसिंग नेटवर्क इश्यूज. सो आई थिंक राधिका मैम स्क्रीन इज फ्रोजन. आई एम सो थैंकफुल टू राधिका मैम कि उन्होंने हमारा इस इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया और उन्होंने हमें इतना ज़्यादा टाइम दिया टू मेक अस अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट AAT इज. वी आर हाईली थैंकफुल टू एनिमल एंजल्स फाउंडेशन एज वेल. And with this we end today's session. I hope आपको कुछ नई जानकारी जानने मिली हो. अगर हमें पेरेंट्स सुन रहे हैं तो आपको एक नई प्रकार की थेरेपी अवेलेबल है जो आपके एग्जिस्टिंग थेरेपीज को और एनहांस कर सकती है, आपको वो जानने मिले हो. आपके कोई डाउट्स हो AAT के रिलेटेड तो वो सॉर्ट आउट हुए हो, या आपको और जानकारी चाहिए तो प्लीज़ फील फ्री टू गेट इन टच विद अस और हम आपको उनसे कनेक्ट करवा सकते हैं. With this, I'll also like to kind of share a very good news कि एनिमल एंजल्स फाउंडेशन के साथ पहल भी जुड़ रहा है
और हम बहुत जल्दी हमारे क्लिनिक में एनिमल असिस्टेड थेरेपी शुरू कर रहे हैं। तो अगर हमें कोई पेरेंट्स सुन रहे हैं और उन्हें इंटरेस्ट है कि उन्हें अपने बच्चों के लिए ये थेरेपी का लाभ उठाना है, प्लीज़ गेट इन टच विद अस। हमारे पेज पे हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं। विद दिस आई होप आप सब लोग घर पे रहें, सेफ रहें, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर नियर एंड डियर वंस। Until we meet again with another equally interesting topic and an amazing expert. So I'll see you all next time. Bye bye.